مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خدا کے کلام میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام، اس کا پہلا باب، اس کی 16ویں اور 17ویں آیات۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے: کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ پاک کلام کے پڑھنے اور سننے جان پر خدا کی خاص برکت۔ مسیح کے قادر فتح مند نام میں سب کو سلام، سب کو سلام، بڑے ڈیلا سا سلام ہے، سب کو سلام۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ آج ہم کلام مقدس میں سے جو بہن نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ان میں سے دو باتوں کو دیکھیں گے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے۔ سب سے پہلی بات جو کی گئی ہے وہ ہے انجیل کی قدرت۔ کتنی باتیں ہیں؟ انجیل اور قدرت، دو چیزیں کی تو سائلنٹ ہے، اس کی زبان نہیں ہے۔ انجیل کی قدرت کس نظریے سے ہم کلام مقدس سے دیکھیں گے؟ کیونکہ انجیل ایمان لانے والوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری۔ راست بازوں کے لیے کیا ہے؟ زندگی کا باعث۔ انجیل کہتے کسی ہیں؟ انجیل مسیحیوں کی پہچان ہے۔ انجیل کے بغیر کیا کوئی مسیح راست باز ٹھہر سکتا ہے؟ انجیل کے علاوہ کیا میں پاسٹر بن سکتا ہوں؟ انجیل کے علاوہ کوئی بھی خادم میریکل یا معجزات کر سکتا ہے؟ انجیل کو ایک نئے تجربے کے ساتھ دیکھیں اور پہچانیں، جو کہ انجیل 22 سال پہلے کی ہمیں پروائیڈ کی جا چکی ہے۔ یہ انجیل ایک معمولی لفظ نہیں ہے، یہ انجیل کو عام دنیا میں سے لیا گیا نام نہیں ہے۔ انجیل آپ کے لیے ایک قدرت کا تحفہ ہے جو کہ آسمانی نام رکھا گیا، اور رکھا کس نے آسمانی نام؟ جو کہ آسمان سے فرشتہ آیا اور اس نے اپنی زبانی کہا کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی کیا دیتا ہوں؟ بشارت دیتا ہوں۔ تو انجیل کے لقمی معنی کیا ہوئے؟ خوشخبری، خوشی کی بشارت۔ اور یہ لفظ بولا کس نے؟ آسمانی فرشتوں نے کہا کہ میں تمہیں کیا دیتا ہوں؟ بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ جب ہم اس خوشی کی بشارت کو دیکھتے ہیں لوکا کی کتاب میں پہلے باب اس کی 35 آیت میں، تو آسمان سے لکھا ہے کہ ایک فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کر چرواہوں کو بولا کہ میں تمہیں بڑی خوشخبری یعنی کہ خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک کیا ہوا ہے؟ مننجی پیدا ہوا ہے۔ اور وہ مننجی جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے مقرر کیا گیا ہے، نہ وہ مذہبوں میں ڈیوائیڈ ہے اور نہ وہ ملکوں میں بانٹا گیا ہے، اور نہ وہ مقرب یعنی کہ عورت اور مرد کے لیے مقرب ہوا ہے، بلکہ وہ بنی نوع انسان کے لیے یہ نبی برپا کر دیا گیا ہے۔ اور یہ خدا کی الوہیت اور خدا کی قدرت کے وسیلہ سے یہ روح القدس کی قدرت کا سایہ جب مقدسہ مریم کے اوپر پڑا تو جبرائیل فرشتے نے اپنی زبان سے کہا کہ سلام اے مریم، پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، اور تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اور مقدسہ مریم گھبرا گئی اور کہتی کہ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ اسلام کو میں نہیں جانتی، کیونکہ یہ اسلام جو ہے یہ میرے لیے یہ اس کے ذہن میں الٹا سیدھا سوال آنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک کنواری ہونے کے ناطے میرے بیٹا پیدا ہوگا۔
लेकिन जब्राइल फरिश्ते ने क्या कहा कि खुदा ताला की कुदरत तुझ पर क्या करेगी, साया डालेगी। ये भी लूका की अंजील और उसके गालबन आपको पहले बाब में से मिलेगा कि लूका की अंजील में से मुकर्रब फरिश्ते जब्राइल ने कह दिया कि वो खुदा ताला की कुदरत के वसीला से, किसके वसीला से, कुदरत के, खुदा ताला की कुदरत के वसीला से पैदा होगा। लिखा है कि अंजील की कुदरत, किसकी कुदरत है, अंजील की कुदरत है। अंजील की कुदरत है इनके खुशखबरी की कुदरत, खुशखबरी की बशारत की कुदरत कि हमारे दरमियान ये कुदरत कैसे ज़ाहिर की गई, हमारे दरमियान ये कुदरत का लफ्ज क्यों बोला गया, कुदरत है क्या चीज है। हम कुदरत का नाम तो सुनते हैं लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर, तजर्बे के तौर पर हम उसको परखते नहीं हैं कि कुदरत है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी को भी कहेंगे कुदरत का क्या मतलब है, हम कुदरत किसे कहेंगे, कुदरत है क्या, कुदरत किसे बोलेगी। आए कुदरत का थोड़ा सा मुशाहिदा करेंगे अंजील को बयान करने से पहले। जो लिखा है कि अंजील जो है ये खुदा की कुदरत है। अगर अंजील खुदा की कुदरत है तो खुदा की कुदरत को पहले हम देखेंगे, तो फिर अंजील को देखेंगे कि अंजील के जो मैनी खुशखबरी के हैं तो इसमें कुदरत कैसे आ गई, कहां से काम करती है, कुदरत कहते किसे हैं। क्योंकि कुदरत जो है वो लुकमी मैनी में एक लाजवाल है, कुदरत को जवाल नहीं है। कुदरत अनदेखी चीजों का सबूत है, कुदरत परखी जाती है, कुदरत देखी नहीं जाती। कुदरत के काम जो है अनमोल काम है, जो काम नामुमकिन है वो कुदरत करती है। वो काम जो नहीं होते वो कौन करता है, कुदरत करती है। तो अंजील की जो कुदरत है, खुदा की तरफ से अंजील में कुदरत है। अगर मैं कहता हूं कि कुदरत अंजील में ना होती तो मैं कैद खानों में से गुजरा और अंजील ने मुझे आजाद किया। मैं बीमारियों की हालत में और बहुत से क्राइस्ट में से गुजरा हूं। अगर खुदा की कुदरत इस अंजील मुकद्दस में ना होती जिसको मैंने अपने दिल में बसा रखा है, ये मुझे कभी भी इन दुखों से आजादी का सबब ना बनने देती। हालेलुया। अगर अंजील मुकद्दस में कुदरत है तो अंजील जो है खुशखबरी है। तो जो मुकर्रब फरिश्ता अपनी जबान से सादर करता है कि तुम आसमानी कुदरत को या अंजील की बशारत को मैं तुम्हें एक हुक्म देता हूं कि तुम जाओ, जाकर दाऊद के शहर में उसका दीदार करो, उस नबी को जाकर देखो जो दाऊद के शहर में पैदा हुआ है और हर एक अहले लुगत के लिए भेजा गया है। और उसी वक्त कुदरत ने अपना जोर दिखाया और अपने काम दिखाना शुरू कर दिए। क्योंकि कुदरत ने किसको पैदा किया, यसू को पैदा किया। यसू किसे कहते, कलाम तवल्लद हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मबूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। क्योंकि जब खुदा बाप का इकलौते का लफ्ज बोलता है तो इकलौता बेटा जो है ये जिस्मानी तौर पर, क्योंकि हम इंसान होने के नाते जिस्म रखते हैं, तो जिस्म और जिस्मानी होने के नाते खुदा जिस्मानी लफ्ज को हमारे लिए चुनाव करता है कि मुझ में से निकला हुआ कलमा और मुझ में से निकला हुआ नूर, नूर में से नूर। जैसे तुम्हारे बदन से तुम्हारी औलाद पैदा होती है, वो कहता है तुम जिस्मानी हो, वही तरीका मैंने अपने उस कलमे के साथ किया और वो कलमा मेरे जिस्म में से जिस्म निकला। क्योंकि खुदा का जिस्म जिस्मानी तो नहीं है ना, खुदा का जिस्म क्या है, वो तो रूहानी है। और वो रूहानी होने के नाते अपने बेटे को भी रूहानी टॉपिक पर जनता है, अपने जिस्म में से जिस्म, अपने नूर में से नूर और अपने कलमा में से कलमा दुनिया में भेजता है। और हमें समझाने के लिए ये लफ्ज बोलता है कि जिससे तुम्हारी हड्डियों और तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी औलाद पैदा होती है वो तुमसे दूर नहीं है। इसीलिए मैंने भी अपने कलमे को अपने जलाल में से जलाल भेजकर दुनिया में उसको एक बेटे का लक़ब दिया कि तुम समझो कि यही बेटा खुशखबरी का बायस है। हालेलुया। कौन खुशखबरी का बायस बना, वही बेटा, वो बेटा खुशखबरी का बायस बना। और बेटे के वसीला से
दुनिया में कुदरत ज़ाहिर होती है। हमें देखना है कि कुदरत है क्या। आए कुदरत का थोड़ा सा मुशाहिदा करेंगे कि कुदरत के जो लुकमी मैनी क्या है। आए अय्यूब की किताब में से देखेंगे उसका 26 बाब कि कुदरत कहते किसी हैं। आपको थोड़ा सा मैं मुशाहिदा कराऊंगा। अय्यूब की किताब उसका 26 बाब और उसकी 5 आयत से हम पढ़ेंगे। यह है कुदरत के कुछ निशानात जो कुदरत अपने जलाल के वसीला से अपने आप को ज़ाहिर कर रही है। कुदरत का पहला लफ्ज 5 आयत से, मुर्दों की रूहें पानी और उसके रहने वालों के नीचे कांपती हैं। किन की रूहें? किन की रूहें? मुर्दों की रूहें पानी और उसके रहने वालों के नीचे कांपती हैं। जो शख्स मर जाता है उसकी रूह कहां जाती है? पताल में। तो यहां कलाम कह रहा है कि मुर्दों की जो रूहें हैं वो पानी और उसके रहने वालों के नीचे कांपती हैं, क्योंकि वो ठहराई गई हैं। जब तक यीशु आ नहीं जाता उनका कभी इंसाफ नहीं होगा। कुदरत ने अपना जलाल ज़ाहिर किया और मुर्दों की रूहों को उसने पानी के नीचे रखा। पताल उसके हजूर खुला है। किसके हजूर? खुदा के हजूर। जहन्नम बेपर्दा है। वो शमाल को फजा में फैलाता है और जमीन को खला में क्या करता है? लटकाता है। पहले ये 6 आयत को वो फजा को फजा में, शमाल को फजा में फैलाता है और जमीन को खला में लटकाता है। जिसमें हम रह रहे हैं इस जमीन का के नीचे क्या को पिलर यहां लगे हुए हैं। कलाम कर रहा है कि इस जमीन को खुदा ने क्या किया? हवा में लटकाया हुआ है। जैसे हम गुब्बारा पकड़े, हम तो धागा बांधेंगे ना, धागा बांधकर उसको जैसे लटका सकते हैं, लेकिन धागे के बगैर हम किसी गुब्बारे को कभी भी खला में ऐसे लटका सकते हैं? हमारे पास कुदरत नहीं है, लेकिन खुदा ने जमीन को पकड़ा और हवा में लटका दिया। ना तो नीचे सतून रखे, ना उसके चौगिर्द को किसी किस्म की कोई सपोर्ट लगाई, और ना ऊपर से कुछ धागा नमा को पावर को बांधा, बल्कि जमीन को क्या किया? हवा में लटका दिया है। और ये हवा में जमीन लटकी हुई है, ये खुदा ने किसके वसीला से जमीन के साथ ऐसा किया? अपनी कुदरत के वसीला से किया है। क्योंकि कुदरत कभी किसी को नजर नहीं आती, लेकिन अपने कामों से पहचानी जाती है कि ये कुदरत दे काम ने जमीन वरना उन्होंने बर्बाद हो जाती। अनोखे काम, यानी कि जिसे कहते हैं कि काम हो नहीं सकती, ये कुदरत का काम है। कुदरत ने जमीन को फैला दिया और कोई सपोर्ट नहीं दी। वो कहते हैं कि वो अपने दिलदार बादलों में पानी को बांधता है और पानी उसके बोझ से फटता नहीं। ये 8 है। इसका थोड़ा सा मुशाहिदा करें कि वो अपने दिलदार बादलों में पानी को बांध देता है। जो बारिश आती है तो पानी कहां से टपकता है? आसमान से। और आसमान से पानी भेजता कौन है? खुदा भेजता है ना। तो खुदा ने एक जरिया कैसा बनाया हुआ है कि वो बादल को दरमियान में रखता है और बादल के अंदर पानी भर देता है। और वो बादल अगर हमारे दरमियान से गुजरे भी तो हवा की मानंद, एक चौके की मानंद। अगर हम उस बादल को पकड़ना भी चाहें तो एक रुई के गाले की तरह वो हमारे हाथ से फिसल जाएगा। लेकिन एक मनोमुई जिसे कहते हैं, हजारों टन लाखों टन जो पानी है वो अपने अंदर वो रुई का गाला अपने अंदर जज्ब कर लेता है। और खुदा अपनी कुदरत के साथ उसे हुक्म देता है कि जा तू कसूर में तो बरसना, लेकिन रायविंड को छोड़ देना। तू रायविंड में तो बरसना, लेकिन आगे मांगे को छोड़ देना। जो कुदरत हुक्म देती है, हवा और बादल उसका हुक्म मानती है। इसमें से क्या ज़ाहिर हुई? खुदा की कुदरत है कि खुदा ने कैसा नहीं बरसाया है कि देखें बीच में से तो वो छोड़ गया है, इधर बारिश होगी है, लेकिन इस साइड पे बारिश नहीं हुई। ये की ये तो खुदा की कुदरत है। देखिए आधा उसने मैदान छोड़ दिया है, आधे मैदान में उसने बारिश डाल दी है। हाँ भाई ये खुदा दी कुदरत है। ते खुदा दी कुदरत दे काम की ने? अनोखे ने।
खुदा अपनी कुदरत को अपने कामों से जाहिर कर रहा है कि बादल के ऊपर कोई शख्स सवार नहीं हो सकता, बादल के ऊपर कोई और चीज कभी नहीं आ सकती, लेकिन खुदा पानी को उसमें बांध देता है और वो बारिश जब बरसाते हैं तो बारिश इतनी हो जाती है कि गांव के गांव बह जाते हैं, सैलाब बर्पा हो जाता है और शहर के शहर, कंट्रियों के कंट्रियां उस पानी के वसीला से बर्बाद हो जाती हैं। इतना पानी वो बहता है, लेकिन हवा और बादल के अंदर इतना पानी जमा कर देता है। ये किसकी कुदरत है? ये खुदा की कुदरत है, और खुदा अपनी कुदरत के वसीला से अनोखे काम करता है। ये खुदा की कुदरत के निशानात हैं जो किसी शख्स के हाथ के वसीला से ये वकूअ पजीर नहीं हो सकती। हालेलुया। खुदा अपनी कुदरत के वसीला से अपने निशान ज़ाहिर करता है कि देखो मैं कुदरत बरा क्या हूं, खुदा। ये खुदा की कुदरत के तासरात हैं जो लिखा है कि अंजील खुदा की कुदरत से भरी हुई है। ये पुराना ऐदनामा जो कहता है कि वो अपने दिलदार बादलों में पानी को बांधता है और बादल उसके बोझ से फटता नहीं। देखिए इसमें खुदा की कुदरत है। वो अपने तख्त को क्या करता है? ढांक लेता है और उसके ऊपर अपने बादल को क्या करता है? तान देता है। उसने रोशनी और अंधेरे के मिलने की जगह तक पानी की सतह तक हाथ बांध दी है। आसमान के स्तूल कांपते और उसकी झटकी से क्या करते हैं? हैरान होते हैं। वो अपनी कुदरत से क्या करता है? समंदर को मौजज़न करता है। हालेलुया। वो अपनी कुदरत से क्या कर रहा है? समंदर को मौजज़न। समंदर जब अपनी लहरों को डगमगाहट की तरह पैर फेंकता है तो उसकी लहरों के आगे कोई भी ताकत खड़ी नहीं होती। ये खुदा अपनी कुदरत को ज़ाहिर कर रहा है कि मेरी कुदरत है समंदर के पानी को उछालती है। मेरी कुदरत समंदर के पानी को कभी दाएं कभी बाएं और कभी सीधा, लेकिन उस कुदरत को देखकर अगर हम वहां गए नहीं तो नजारा देखकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखिए समंदर के अंदर क्या हलचल मची हुई है, लेकिन खुदा कह रहा है कि मैंने अपनी कुदरत के वसीला से उसको बांधा हुआ है। और मैंने मिसाल की किताब में लिखा है कि खुदा की कुदरत ने उसका चुगिर्द तहरा बना दिया है और पानी उसका हुक्म मानता है। वो मौजज़न होता तो है लेकिन उस लकीर को अबूर नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि मेरे खुदा ने मुझे जो कह दिया है मैंने उसे मानना है। और खुदा की कुदरत जो है उसे अपनी मौजज़न और उछलते हुए पानी को अपने कंट्रोल करती है, और ये खुदा के हुक्म के मुताबिक होता है, क्योंकि खुदा की कुदरत के अलावा ये काम कभी वकूअ पजीर नहीं हो सकते। ये खुदा की कुदरत है। ये खुदा की कुदरत के थोड़े से निशानात हैं कि वो आगे पीछे देखें। अय्यूब की किताब उसके 9 बाब की गालबन 6 है। वो फिर इस बात को ज़ाहिर करता है। वो जमीन को उसकी जगह से क्या करता है? हिला देता है और उसके स्तून कांपने, जब जमीन हिलती है उसके स्तून कांपते हैं तो क्या बर्पा होता है? जलजला, भूचाल आना शुरू हो जाती है। ये किसकी वजह से है? ये खुदा की कुदरत की वजह से है। हमारे बड़े कहते थे कि जमीन दे हेठा बैल ने और जो सिंह लाते दूर सिंह दे करते की करते जमीन हिलना शुरू हो जाती है। इनके हमारे बड़ों की जो सोच है वो बाइबल के मुताबिक नहीं बल्कि सीधे साधे लोग थे। लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या कहती है कि जब मैं अपनी कुदरत के वसीला से जमीन को हिला देता हूं और वो कांपने लगती है, क्योंकि जमीन का वजूद इतना बड़ा है कि कोई शख्स कभी भी जमीन को अबूर नहीं कर सकता। इतनी बड़ी जमीन, लेकिन फिर भी खुदा अपनी कुदरत के वसीला से इसको हिला कर रख दे, क्योंकि कुदरत में क्या है? कुदरत में जोर है और कुदरत में जलाल है और कुदरत के आगे कोई शख्स ठहर नहीं सकता। ये कुदरत अनोखे काम करती है जो शख्स से, जो आदमियों से नहीं हो सकते। वो कौन करती है? वो कुदरत करती है। हमें कुदरत को देखना है, क्योंकि अंजील की कुदरत, ये है अंजील की कुदरत। तो आसमान और जमीन को हिला देने वाली खुदा की कुदरत है। उसके अलावा किसी की जरूरत नहीं कि जमीन और आसमान को हिला सके। हालेलुया। इसलिए आगे वाली आयतों में क्या लिखा हुआ है? वो आफताब को हुक्म करता है, वो ध्रुव नहीं होता, और तारों पर मोर लगा देता है
अगर खुदा चाहे तो अपनी कुदरत को ज़ाहिर करे तो क्या वो सूरज जो गुरूब हो सकता है, तुलू हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ये खुदा की कुदरत है और हम लोग खुदा की कुदरत के ऊपर ईमान रखने वाले हैं, हम किसी और हस्ती के मानने वाले। तो जोर से कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुदरत खुदा की आपके दरमियान भी इसी तरह वकूफ पजीर हो सकती है अगर हम कुदरत के ऊपर बिलीवर बन जाए, ईमान रखें, तो खुदा जो अनोखे काम कर रहा है यही कुदरत है आज के बदलों के लिए अनोखे काम करेगी और वो काम करेगी जो कभी हो ही नहीं पाते। इसलिए कुदरत के काम अनोखे, कुदरत के जितने भी काम हैं वो निराले हैं, क्योंकि कुदरत लाजवाल है, उसको ज़वाल नहीं है। इसीलिए वो क्या करता है, तलू नहीं होता और तारों पर मोहर लगा देता है, वो आसमानों को अकेला तान देता है। आसमान को अकेला तानने वाला कौन है? खुदा। और खुदा अपनी कुदरत के वसीला से आसमानों को अकेला तान रहा है, वो किसी का सहारा नहीं लेता। और समंदर की लहरों पर वो क्या करता है? चलता है। खुदा समंदर की लहरों पर चल सकता है, कोई दूसरा नहीं चल सकता, क्योंकि उसमें कुदरत है। चलता है, उसने बिनातिल नाश और जबार और सरैया और जनूब के बुर्जों को बनाया। बिनातिल नाश क्या है? यानी कि आप आसमान पर खितियां देखते हैं, खितियां, और जो कहते हैं कि जबार और सरैया और जनूब के बुर्जों को बनाया। यानी कि वो खुदा अपनी कुदरत के वसीला से आसमान के नक्शे को पेश कर रहा है। जब हम आसमान पर निगाह करते हैं तो सितारों को देखते हैं, कोई सितारे कभी मध्यम हो जाते हैं, कभी कोई सितारा ज्यादा जगमगाहट करने लगता है, कोई ऐसे सितारे हैं जो कि बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, हम उनको खितियां बोलते हैं। और यहाँ अय्यूब की किताब उनको अक़दे सरैया बोल रही है, यानी कि वो सहेलियां जो एक दूसरे का दामन पकड़े हुए हैं, वो सहेलियां जिन्होंने एक दूसरे की कहने के जैसे पंजाबी कहले के चुनियां फड़ियां ने और वो कठियां सत्ते इक्के जगह ते करके गोल दायरे से खड़ियां ने, यानी कि यहां उनको अक़दे सरैया कहा गया है। वो सहेलियां सरैया यानी कि वो सहेलियां जो एक दूसरे का दामन नहीं छोड़ती और साथ साथ रहती हैं। ये खुदा ने अपनी कुदरत के वसीला से आसमान पर अनोखे काम कर दिखाए हैं। और सितारे जो हैं, जो बुर्ज बनाए गए हैं, बुर्ज कौन से जो आसमान के ऊपर है? एक बुर्ज असगर, दूसरा बुर्ज अकबर, यानी कि एक छोटा बुर्ज और दूसरा बुर्ज बड़ा एक बुर्ज। कौन सा? एक सूरज, एक चांद, यानी कि अकबर ओस असगर नासरीदा, यानी कि एक बड़ा और एक छोटा। जो छोटा है वो रात को अपनी हुक्मरानी करता है और जो बड़ा है वो दिन को हुक्मरानी करता है। ये खुदा ने दो बड़े बुर्ज बनाकर साबित किया कि मैं कुदरत बड़ा खुदा हूं, मेरे अलावा अगर कोई खुदा है तो आसमान के ऊपर दो बुर्ज बनाकर दिखाए, आसमान के ऊपर ये जो सितारे हैं ये बनाकर दिखाए। लेकिन कोई पावर खुदा की कुदरत के अलावा है ही नहीं जो आसमान के ऊपर अनोखे काम करके दिखाए। और रात के वक्त भी छोटे छोटे सितारों के जरिए से हम आसमान का नजारा करते हैं और भी लुत्फ अंदोज होते हैं कि देखे खुदा की कुदरत के नजारे कैसे हैं। हालेलुया। इनके खुदा अपनी कुदरत को ज़ाहिर करके अंधेरे में छोटे छोटे बल्ब लगा देता है और वो पता नहीं कितने कोसों दूर है, लेकिन आसमान जमीन पर बैठा हुआ शख्स उनको यहाँ देखता है और देखकर उसे लुत्फ अंदोज हो रहा है और कहता है खुदावंद तेरे काम निराले ने, तेरे अनोखे काम ने। एक तारा ऐसे आता है, वो यूं कहते हैं कि तारा टूट गया, वो गिरता है और हम देखते हैं कि दुआ करना शुरू करो, वो तारा डिग गया। वो ये इनके खुदा अपने आसमान पर वो जो करिश्मे दिखाता है, अनोखे काम दिखाता है, अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता है। क्यों? क्योंकि इंसान फिर भी गुनाहों से तौबा कर ले और कहे कि खुदावंद मैं गुनहगार हूं, तेरी कुदरत बड़ी है, आइंदा मैं गुनाह नहीं करूंगा। लेकिन इंसान इतना मंजा हुआ है कि वो कहता है कि खुदा कुदरत भी वहाई जाए तो असं गुनाह भी की जाते, कोई गल नहीं, वो आधी जगह ही आधी जगह। यानी कि खुदा इंसान गुनाह करने से फिर भी बाज नहीं आता।
वो बाज नहीं आएगा। तो खुदा ने कहा है कि आखिरी अदालत के दिन इन लोगों का हश्र मैं ऐसे करूंगा कि घोड़ों की लगामों तक खून बहाऊंगा, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया है, गुनाहों से तौबा नहीं की। इसीलिए वो अपनी, यानी कि हम कुदरत के ऊपर रहेंगे। ये है खुदा की कुदरत के कुछ तासरात। अगर हम लिखा है कि अंजील की बशारत जो है, अंजील की जो कुदरत है, हमने पीछे क्या पढ़ा है अभी अभी कि समंदर के ऊपर हुक्म कौन करता है, खुदा की कुदरत। समंदर को कौन हुक्म में बांध देता है, खुदा की कुदरत। सितारों को हुक्म ऊपर कौन चलाता है, खुदा की कुदरत। और हवा को भी हुक्म कौन करता है, खुदा की कुदरत। जब हम पैदाइश पहला बाब उसकी पहली आयत को पढ़े तो वहां भी खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती है और पानी के ऊपर चलती है, ये भी है खुदा की कुदरत। लेकिन जब हम आगे अंजील में आ जाते हैं तो क्या अंजील में ये सब बातें हैं जो हमने पीछे ज़बूर नवीस ये कहा कि मार्फत है या अय्यूब साबर की मार्फत ये बातें सीखी हैं, ये खुदा की कुदरत देखी है, जो अनोखे काम हो रहे हैं ये देखे हैं। ये अंजील मुकद्दस में खुदा की कुदरत ऐसे ही काम कर रही है कि नहीं कर रही। क्या पीछे आपने अय्यूब की किताब उसके 29 बाब में पढ़ा है कि खुदा पानी को अपने कंट्रोल में करता है, हवा को हुक्म देता है तो वो पानी बरसाती है, और बादलों को हुक्म देता है तो वो पानी लेके बारिश बरसाता है। ये कौन करता है, ये खुदा करता है कि नहीं करता। तो आगे अंजील मुकद्दस में यही तासरात किस में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहे हैं। यही निशान किस में पाए जा रहे हैं, है किसी को याद है? कोई नहीं बता रहा, मैं कहूंगा पानियों को हुक्म कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? आस्था बोलने से कोई फायदा नहीं है। यहां लफ्ज है कि अंजील की कुदरत, और पुलूस कर रहा है कि मैं अंजील से शर्माता नहीं हूं, तो आप फिर अंजील से क्यों शर्माते हैं? पीछे खुदा अगर काम कर रहा है तो आगे अंजील में आकर ये तासरात पाए गए हैं। तो अंजील की जो बशर्त है वो तो पुलूस बरसरे आम ऐलान करके ऊंची आवाज से कहता है कि अंजील में कुदरत पाई जाती है और वो कुदरत उसके बेटे में पाई जाती है। तो आप दबी आवाज में क्यों कहते हैं? यीशु पानी को क्या करता है, वो हुक्म देता है, और पानी जब हुक्म उसका मानते हैं तो पीछे भी पानी खुदा का हुक्म मान रहे हैं। आसमान से पानी बरसा तो खुदा ने कहा कि पानी बादल में बंध जाए, और खुदा ने जो कहा वही बादल में पानी बंध गया और वो बारिश की सूरत में जमीन पर बरसा। तो नए अहदनामे में जाकर हमने देखा कि जब कश्ती पर यीशु सोया हुआ था तो शागिर्दों ने कहा, ऐ खुदावंद हम डूबे जाते हैं, हम हलाक हो गए, हमें बचा। और वो उसी वक्त कैटअप हुआ, और कैटअप होने के बाद उसने हवा से कहा कि थम जा, और पानी से कहा कि साकत हो जा। उसी वक्त हवा और पानी यीशु के हुक्म से साकत हो गई और डूब गई, और कुदरत का अनमोल तोहफा और कुदरत के जलाल की रोशनी यीशु के वसीला से अंजील में पन्हा और ज़ाहिर की गई। वही कुदरत पीछे वाली यीशु के वजूद में होकर बोली कि नहीं बोली। पीछे यीशु खुदा हुक्म करता है और पानी को हुक्म में लेके आता है, और यहाँ यीशु हुक्म करता है। और शागिर्दों ने कहा कि ये कैसा शख्स है जिसका हुक्म कौन मानते हैं, हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। और वो मुतासर हो गए, वो लोग मुतासर हो गए और कहने लगे अनोखा शख्स है, क्योंकि आज तक हमारा हुक्म तो हमारे मवेशी भी नहीं मानते, हमारा हुक्म तो हमारे बच्चे भी नहीं मानते, हमारा हुक्म महल्लेदार या हमारे बहन भाई भी नहीं मानते, लेकिन वाद शख्सियत यीशु है जो हुक्म पानी के ऊपर करता है। तो पानी ने भी उसका हुक्म माना, और हवा जो किसी के कंट्रोल में नहीं है उसने भी यीशु के हुक्म को माना। और वो कुदरत जो पीछे मौजजन होती थी वो यीशु में होकर मौजजन हुई, और पता चला कि वाकया यीशु में क्या पाई जाती है, कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। यीशु की कुदरत अगर सादर होती है तो मैं कहता हूं कि यीशु पानी पर चलता है, यीशु में कुदरत काम करती है। और
हवा और पानी उसका क्या मानते हैं? हुक्म मानते हैं। अंधों को आंखें देना ये किसी डॉक्टर का काम नहीं है। और दूसरा, बहरों को कान देना, लंगड़ों को चलाना, कोड़ साफ करना ये किसी शख्स का काम नहीं है। 12 साल की लोगन ने क्या अपनी सारी जायदाद लुटा ना दी? उसको अपनी जायदाद के ऊपर क्या मान ना था? वो कहती थी मुझे कोई भी बीमारी लगेगी तो मेरे पास तो रुपया पैसा बहुत ज्यादा है, मेरा रुपया पैसा मुझे बचा लेगा। लेकिन लास्ट डे के सारी जायदाद खत्म होगी और आखिरकार देखा कि अब मुझे जायदाद का सहारा नहीं मिलने वाला। तो उसके बाद यीशु के कदमों में गिरी और कहा कि मैं तुम्हें छू ही लूंगी तो मैं चंगी की जाऊंगी, क्योंकि मेरी दौलत ने मुझे नहीं बचाया, ये तेरी कुदरत मुझे बचा सकती है। तो यीशु में से कुदरत निकली और कुदरत ने उसके यानी कि उस औरत ने उस कुदरत को पल्लू को छुआ, उसी वक्त मोजा वकूफ पजीर हो गया। यानी कि यीशु में कुदरत निकलती है। और फरीसियों ने इकरार किया और कहा कि जन्म के यानी कि अंधे की आंखें कोई शख्स दुनिया में नहीं खोल सकता, लंगड़ों को चलने के काबिल कोई नहीं कर सकता, अंधों को आंखें कोई नहीं दे सकता। तो कहते हैं कि हम क्या करें, लोग इसके पैरों हुए जाते हैं लेकिन हमारी बर्दाश्त से पैर। लेकिन वो फकी, वो फरीसी, वो शरा के आलम और वो सारे जितने भी यानी कि वो वहां के रहने वाले वो मुफक्कर थे, सब जमा हुए और आपस में सलाह करके वो कहते भी थे, हाँ हम जानते हैं कि ये खुदा की कुदरत के अलावा कोई काम नहीं कर सकता, ये सारे काम खुदा की कुदरत के अलावा कोई नहीं कर सकता। आप अंदाजा लगाए कि लिखा है कि मौज से कुदरत करती है। डॉक्टर क्या करते हैं? बेशक अमसाल की किताब में लिखा है कि डॉक्टर बुरे नहीं हैं, मैंने उनको बनाया है। अमसाल की किताब कहती है कि डॉक्टरों के पास जाओ, उसकी रिस्पेक्ट कर, उसकी इज्जत कर, क्योंकि एक दिन तुम्हें उसके हाथ में पड़ना है। लेकिन इनके ऊपर जो उसका फेथ है, ऊपर उसका जो मेन पावर है वो डॉक्टरों के ऊपर है, क्योंकि डॉक्टर इंसान के जिस्म की बीमारियों को खत्म कर सकती हैं। डॉक्टर हमारी आंखों का जो प्रॉब्लम है उसको भी ठीक कर सकती हैं अपनी जदीद साइंसी लिहाज से, या हमारे बदन में कोई प्रॉब्लम जिस्म में है तो वो डॉक्टर ठीक कर सकती हैं। लेकिन अगर इंसान के बदन में ऐसी तस्वीर बस जाए जो कि वो डॉक्टरों के बस की बात ही नहीं है, तो क्या वो डॉक्टर सर्जन MBBS भी आ जाए तो क्या उसके जिस्म से वो उस तस्वीर को निकाल सकेंगे? क्योंकि वो तो किसी को नजर नहीं आती, वो तो जिस्म में किसी किस्म का कोई भी कंफ्यूजन के जरिए डॉक्टर के ना तो इंजेक्शन में आएगी, ना तो डॉक्टर के एक्सरे में आएगी, ना तो अल्ट्रासाउंड में आएगी, किसी भी तरीके से डॉक्टर के कहले के कब्जे में नहीं आती। तो यहां पे डॉक्टरों से बढ़कर कौन काम करती है? खुदा की कुदरत काम करना शुरू कर देती है। जब वो शख्स खुदा की कुदरत के पास आता है तो खुदा लाजवाल खुदा है, और खुदा अनदेखा खुदा है, और खुदा नामुमकिनात का खुदा है, और वो काम करने शुरू कर देता है और दिखाता है कि देख यहाँ डॉक्टरों की अकल ज़ाइल हो जाती है, मेरी अकल का स्टार्ट हो जाता है। जहां डॉक्टरों की हिकमत अमली खत्म हो जाती है, वहां से मेरी कुदरत का जो नजरिया है वो आगे काम करना शुरू कर देता है। तो खुदा अपनी कुदरत को इंसान के जिस्म के लिए आज भी मुकर्रर करता है कि मेरे अजीजों, मैंने अपनी कुदरत इस अंजीले मुकद्दस में रखी हुई है, क्योंकि मैं वो शख्स हूं, मैं आपको बता दूं कि जिन के वसीला से मैं कहूं कि मैं अपने घर का पूरा दारोमदार नहीं चला सकता, मैं मुकम्मल दिहाड़ी भी नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं, मैं काम पे जाऊं तो मुझे काम पे लगाने वाले नहीं आए लोग। मैं लाहौर में जब रहा करते थे तो मैं जॉब छोड़ दी, मैंने कहा मैंने नहीं करनी, दिहाड़ी के अड्डे में जाकर खड़ा होगा कोई, मैं दिहाड़ी लेके जा रहा। वो कहते भाई काम कर, जाके तेरे को काम करते होते नहीं। मैं खुदा मुंदा तेरी मर्जी, पता नहीं की मामला है। आखते एक महीना मैं इस तरह किया, लेकिन मैंने कोई दिहाड़ी नहीं करने लगे।
यानी कि इस तरह का निकम्मा शख्स, इस तरह का रद्द किया हुआ शख्स। लेकिन मैं ये बात सोचता और कहता कि खुदावंद इसमें तेरी कुदरत है, मुझे पता नहीं है ये क्या मामला चल रहा है। जिनके रद्द किया हुआ शख्स हूं, अपने बच्चों को रोजी तक नहीं कमा के मैं खवा सकता, अपने बच्चों के लिए प्रॉपर तौर पर है मैं रोजी नहीं कमा सकता। लेकिन खुदा की कुदरत का मुशाहिदा जब मैंने अंजील मुकद्दस में से किया तो मेरे लिए उसने कहा कि मैं तेरे लिए आसमान के दरीचे खोल दूंगा और रोटी रोजी तेरे लिए मैं फरावानी के साथ प्रोवाइड करूंगा। चल खुदा की कुदरत को देख और अंजील मुकद्दस का मुशाहिदा करके इसको अपने अंदर ले, क्योंकि अंजील मुकद्दस है ये औराक के ऊपर जो लिखी गई है, ये औराक के ऊपर लिखने के लिए नहीं आई, ये एक जरिया है। ये कहूंगा कि ये लिखी गई एक पुल है। असलियत में जब अंजील मुकद्दस आसमान से खुशखबरी नाजिल हुई तो क्या वो वर्गों पे लेकर नाजिल हुई थी? क्या जहां कह ले कि तख्तियों पर लिखी हुई थी, क्या पत्थरों के ऊपर लिखी हुई थी? जब आसमान से नाजिल हुई अंजील मुकद्दस खुशखबरी किसका नाम है? यीशु का नाम है। याद रखना इस बात को। यीशु ने खुशखबरी किन को दी? अंधों को खुशखबरी दी कि मैं आपके लिए खुशखबरी हूं, मैं आपकी आंखें दूंगा। लंगड़ों को खुशखबरी दी कि मैं आपके लिए खुशखबरी हूं, मैं आपको चलने के काबिल करूंगा। यीशु ने पैरालाइज लोगों को खुशखबरी दी कि तुम चलने के काबिल हो जाओगे, मैं आपके लिए आ गया हूं। और जो जिन लोगों की जिंदगी में बहुत नसीबो फराज गुजर रहे थे उनको कहा कि मैं आपके लिए खुशखबरी हूं। कौन खुशखबरी बना? यीशु खुशखबरी है। तो यीशु ने क्या हाथ में अंजील मुकद्दस पकड़ी होती थी? ये कलाम उसके कहां से निकलता? उसके अंदर से निकलता और उसके दिल की गोश की तख्तियों के ऊपर लिखी हुई तफसीरें और लिखी हुई तमसीलें वो लोगों के सामने बयान करता और कोई किताब का सहारा नहीं लेता था और किसी भी किताब को पढ़ता नहीं था, बल्कि ना तो वो यूनिवर्सिटी गया, ना वो प्राइवेट स्कूल में गया, ना वो उसने मिडिल क्लास को पास किया, बल्कि खुदा की कुदरत है जो कि जब्राइल फरिश्ते ने कहा कि खुदा की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। और मुकद्दसा मरियम के ऊपर खुदा की कुदरत ने साया डाला और खुदा की कुदरत के वसीला से इब्ने मरियम और यीशु पैदा हुआ। और जब वो पैदा हुआ तो उसमें से जितना भी कलाम निकला है वो उराक के ऊपर पड़ा हुआ से नहीं निकाला, बल्कि अपने दिल से निकाला। और जो उसके गोश दिल के गोश के ऊपर लिखा हुआ था वो कलाम निकल कर लोगों के लिए फैज याब बन गया। तो ये तो किताब जो लिखी गई है ये हमारे ईमान की मजबूती के लिए है। इसको अंजील, इसको खुशखबरी कहा गया क्योंकि यीशु के मुंह से लिखे गए। और जब कलाम इसके ऊपर उराक के ऊपर सवार होकर हम तक पहुंचा है तो मेन जरिया जो है वो खुदा कहता है कि जैसे यीशु कहता है कि जैसे मेरे दिल में कलाम लिखा हुआ था तुम भी इस कलाम को कहां लिखो? अपने दिल की तख्तियों पर लिखोगे, उस वक्त तुम कामयाब होगे और इस दुनिया में भी कामयाब होगे और आसमान के ऊपर भी कामयाब होगे। दो जहानों में कामयाबी उस शख्स की है जिसके दिल की तख्ती के ऊपर ये खुशखबरी लिखी हुई है। जिसके दिल के ऊपर खुशखबरी नहीं लिखी, अंजील नहीं लिखी, मौजे नहीं लिखे, यीशु के हालात जिंदगी के जितने भी बयान आता है नहीं लिखे, उसके दिल के ऊपर तो लिखे नहीं है। और जितने मर्जी वो नारे लगा ले वो कभी बख्शिश का वसीला नहीं बन सकता। हालेलुया। क्योंकि हमें अपने दिल को मुकम्मल तौर पर साफ कर देना है और यीशु की खुशखबरी को अपने दिल के ऊपर लिखना है, क्योंकि इस खुशखबरी में, इस अंजील में खुदा की कुदरत है। खुदा की कुदरत है। इसी अंजील के वसीला से हमारे लिए मौजे करती है। जब कोई भी मौजा होता है तो मैं दुआ करता हूं, मैं कहता हूं खुदावंद ये कैसे हो गया, मुझे नहीं पता, मैं तो इतनी पावर का नहीं हूं, मैं तो इख्तियारीदार शख्स, किराएदार शख्स हूं, क्या मेरी जिंदगी में कभी ऐसा हो सकता है? आवाज आती कि ये खुदा की कुदरत कर रही है, तू नहीं कर रहा। कौन कर रही है?
खुदा की कुदरत है। तो खुदा की कुदरत अपने बंदे में से होकर मौजे क्यों करती है, किस लिए करती है और क्यों ये मौजात हो रहे हैं? क्योंकि अंजील मुकद्दस का जो मतालिया है, अंजील मुकद्दस का जो कह लें जो जितना भी बाइबल मुकद्दस के 66 किताबों का कम से कम मैंने कह लो कि 5-6 दफा शायद बाइबल मुकद्दस से ज्यादा दफा पढ़ा होगा, और इससे ज्यादा दफा हो सकता है, कम दफा नहीं। चारों किताबों का मुताला किया है। क्या वो दिल की तख्ती के ऊपर नहीं लिखी गई? मैं 5 घंटे और भी बोलूं इसी टॉपिक के ऊपर है, वो कम है। लेकिन कहां से ये कह लें कि वो चश्मा निकलता है, कहां से ये कलाम निकल रहा है? दिल से। मैंने तुम्हारे दिल में एक चश्मा जारी किया हुआ है, वो कभी कम नहीं हो सकता। अगर तुमने इस खुशखबरी को अपने दिल में भरा है तो खुदा की कुदरत इस खुशखबरी के अंदर है और तुम्हारे अंदर भी काम करेगी। और जैसे अंजील मुकद्दस है आपके अंदर जगह कर चुकी है, और खुदा की कुदरत भी तुम्हारे अंदर जगह कर चुकी है। हम चाहते हैं कि खुदा की कुदरत हमारे अंदर आ जाए, हम चाहते हैं कि खुदा हमारे साथ बातें करे, हम चाहते हैं कि खुदा का जो कलाम इल्हाम और खुदा का जलाल, खुदा की रोशनी, खुदा का नूर हमारे जिस्म में बसेरा करे। लेकिन हम जब तक अंजील मुकद्दस को अपने दिल में बसेरा नहीं करने देंगे, खुदा की कुदरत हमारे दिल में बसेरा नहीं कर सकती। हालेलुया। अजीजों, खुदा की कुदरत अंजील में है, इसलिए मौजे होते हैं। क्योंकि अक्सर औकात मुझसे लोग पूछते हैं कि ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ का ਤੁਸੀਂ कुछ ले कट्टे? मैं अक्सर औकात गल कहना वा तो मैं उनको ये कहता हूँ कि नहीं, मेरे पास अंजील मुकद्दस खुदा की खुशखबरी है। ये अंजील से मैं शर्माता नहीं, ये अंजील को मैंने दिल दिया है और इस अंजील में खुदा की कुदरत है। और जब दुआ करता हूँ तो मौजे खुद ब खुद होना शुरू हो जाती है। यानी कि अंजील के अंदर खुदा की कुदरत ना होती तो मैं आज आपके सामने कभी खादम ना बनता। अंजील के अंदर अगर कोई खुदा की कुदरत ना होती तो मैं अकेला यहाँ बाबलियाना में आया था, और अब मुझे खुदा ने बेटियों और बेटों की एक बड़ी टीम दे रखी है ना। ये किसकी वजह से है? लिखा है कि आखिरी बातें लास्ट की, आप तंग ना हो जाइएगा, सिर्फ 1 मिनट के लिए, कि जब ये अंजील मुकद्दस के जरिया से यहाँ के मौजज़ात की वजह से लिखा है कि जितने मौजे यीशु करता और उन मौजों के ऊपर ईमान लाकर लोग उसी वक्त उसके पीछे हो लेते और कहते कि हाँ, जो यीशु मौजे कर रहा है ये कुदरत के अलावा नहीं हो सकते, और उसी वक्त वो ईमान लाते और यीशु के पीछे हो लेते और यीशु के साथ वो मिल गए। उनका नाम भी आज कलाम मुकद्दस में लिखा गया है। अगर मौजे खुदा अपने बंदा के वसीला से ना करता तो जितने भी लोग मैंने कहा मेरे साथ रिलेटेड हैं वो कभी मेरे साथ रिलेटेड ना होते, क्योंकि खुदा की कुदरत अपने बंदा में होकर बोली। क्योंकि मैंने अंजील मुकद्दस को दिल दिया, अंजील मुकद्दस से मुझे अपने पास बुला लिया और हम दोनों क्या हो गए? एक। जब एक हो जाते हैं तो अंजील मुकद्दस की वजह से खादमों के अंदर से मौजे होती है। तब अंजील की कुदरत खादमों में होकर बोलती है तो मौजे होते हैं, तो गवाही मेरे यीशु की पैदा होना शुरू हो जाती है। आमीन। आज के कलाम के सबब से खुदा को बरकत दे। सो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज खुदा की कुदरत के लिए दुआ करेंगे कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रुह कुद्दस आज अपने लोगों को भी ये शर्फ दे कि यीशु के नाम